स्वागत है डॉक्टर प्रणेश पुरी टिकटॉक फॉर हेल्दी हार्ट टॉक शो पर हमारे साथ। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपको डॉक्टर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली और कार्डियोलॉजी में ही स्पेशलाइजेशन क्यों चुना आपने? वैसे मेरा बैकग्राउंड, मेरे फादर डॉक्टर थे, तो बचपन से मुझे डॉक्टर फील्ड के बारे में पता था और उसके बारे में बहुत अट्रैक्शन था बचपन से कि डॉक्टर बनना है। एंड कार्डियोलॉजी पर्टिकुलरली इसीलिए बनना था क्योंकि जनरल पब्लिक में कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबिलिटी बहुत कम है और इट इज़ अ रिक्वायरमेंट एंड इट इज़ वेरी डेयरिंग ब्रांच एंड वी आर सेविंग द लाइफ ऑफ द पीपल। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। डॉक्टर प्रणेश, आपका हॉस्पिटल बहुत ही प्यारा है एज आई कैन सी। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि आपका क्या विजन है नॉर्दर्न केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पीछे? जैसे कि आप देख सकते हैं मैडम, दिस इज़ द वन ऑफ द फर्स्ट हॉस्पिटल इन दहीसर ईस्ट एरिया and near the Western Express Highway. So our aim is for the affordable, accessible and best hospital services to be provided in this area. I think Western Express Highway from Dahisar to Andheri, there is no super specialty hospital available. So this hospital will help for the people not only in this area but also in the Borivali East and Kandivali East, which is not available at present. So they हमारा main aim है इस area के। वंडरफुल। तो अगर आप हमारे दर्शकों को अपना ये हॉस्पिटल दिखा पाए तो? ठीक है। So, डॉक्टर प्रणेश, हमें ये बताइए कि आपके हॉस्पिटल में किस किस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं? मैडम, हमारे यहाँ पे वेरियस फैसिलिटीज़ अवेलेबल है इंक्लूडिंग ट्रिपल शेयरिंग, ट्विन शेयरिंग, सुपर डिलक्स एंड सूट रूम्स आर अवेलेबल हियर। तो क्या आप हमें दिखा सकते हैं? अभी सब कुछ रूम्स में पेशेंट्स है बट आई विल शो यू सम रूम्स। So as you can see madam, this is the heart of the Northern Care Hospital where all the magic happens. You can call this as the most important area of our hospital, which includes all the emergency facilities and emergency care which we provide in our hospital. It includes the most important facilities like cath lab, major OTs, minor OTs, ICCU, NICU, and the diagnostics like 2D echo, stress test, all happens in this floor. सो डॉक्टर प्रणेश, जैसे कि आपने अपने हॉस्पिटल में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हमें बताई, तो कैन वी हैव अ लुक एट योर ऑपरेशन थिएटर आल्सो? Yes madam, we definitely look where we do our open heart surgeries and other major surgeries in our hospital. As you can see madam, this is our unit of a major OT in which we do all the major surgeries, orthopedic surgeries, neurosurgeries and other major surgeries. Also we do LSCS and surgeries requiring the cosmetic surgeries are done in this OT. Wonderful. So Dr. Pranesh, we would like to see the supra major OT also of your hospital. As you can see madam, we are going to see our supra major OT. This is our supra major OT where we do the open heart surgeries, which are the most complicated surgeries and which are done only in the major hospitals in Mumbai, which is now available in Dahisar. So this all setups is done for the
Supramajor surgeries like wall transplant, open heart surgeries, the surgeries for the ventricular septal defect, जो दिल में छेद होता है, उनके भी surgeries we are doing here. Bypass surgeries एंड सर्जरीज ऑफ वॉल, कुछ पेशेंट्स को वॉल में दिक्कत होती है तो उनका वॉल रिप्लेसमेंट सर्जरीज आर ऑल्सो डन. So this is our state of the art OT, which includes all the infrastructure to do the complex surgeries which are just available only in the major hospitals in the Mumbai. So people in this area used to previously go to the hospitals in the South Mumbai. So they are not now required to go South Mumbai for this major surgeries. It is available in Dahisar only, which is the main part of our hospital. डॉक्टर प्रणेश पुरी, हार्ट में ब्लड फ्लो को सुचारू रूप से बनाए रखने की प्रक्रिया देखने के लिए आज हम आपके साथ कैथ लैब में होंगे, जिसके लिए मैं और मेरी एंटायर कैमरा टीम बहुत ही एक्साइटेड है. मैं आपको जो बता रहा था कि जो हार्ट के लिए एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी जहाँ होती है, वो जो एरिया है उसे कैथ लैब बोलते हैं, जो अपन अभी देखेंगे. अभी फिलहाल वहाँ पे प्रोसीजर चल रहा है तो अपन बाहर से देख सकते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कंसोल है जहाँ पे हम एंजियोग्राफी जो बाहर से देख के कर सकते हैं. अभी फिलहाल प्रोसीजर अंदर चल रहा है, इसलिए अपन यहाँ से अपन देख सकते हैं कि कौन सी प्रोसीजर हुई है. इसके अंदर हम एंजियोग्राफी के अलग अलग शूट्स यहाँ से देख सकते हैं और बाहर देख के ही पेशेंट के प्रोसीजर में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है जो अपने को समझ में आता है. Amazing, sir. Wow. Yeah. At least you can monitor it from here, no? Yes. Amazing. So, Dr. Pranesh, I'm very well impressed with your world-class super specialty hospital. It's wonderful experience I have. So, मेरा अगला सवाल ये है, डॉक्टर प्रणेश, कि हार्ट ब्लॉकेजेस जो होती हैं उनको कैसे डायग्नोज किया जाता है और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि हार्ट ब्लॉकेज हैपन्स एट द एज ऑफ 60, अबाउट 60. नाउअडेज हार्ट ब्लॉकेज हैपन एट द एज फ्रॉम 20 ऑल्सो. आई हैव सीन मेनी पेशेंट्स की 20 साल की उम्र है, उनको हार्ट अटैक आता है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हार्ट ब्लॉकेज है ये कैसे सस्पेक्ट करते हैं. तो मोस्ट कॉमन सिम्टम इज वेन एवर एनी पेशेंट, किसी को भी चेस्ट पेन होता है, छाती में दर्द होता है, पसीना आता है या चलते समय दम लगता है, तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज सिम्टम्स रहते हैं जो पेशेंट ने नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है. और अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और पर्टिकुलरली ये सिम्टम आते हैं तो उन्होंने अर्जेंट में डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जिसके वजह से उनको अर्जेंटली डायग्नोस हो जाए हार्ट के ब्लॉकेजेस में. मेरा सर अपना अगला सवाल है, डॉक्टर प्रणेश, कैथ लैब में किस प्रकार के प्रोसीजर्स किए जाते हैं और सबसे कॉमन प्रोसीजर कौन सा है? कैथ लैब में सबसे कॉमन प्रोसीजर है वो कोरोनरी एंजियोग्राफी है. कैथ लैब में बहुत सारे प्रोसीजर्स कर सकते हैं. पहले जो एरा था जब हार्ट के अंदर कौन सा भी प्रॉब्लम रहता था तो ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ता था, बट अभी कैथ लैब में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बलून वॉल डायलेटेशन, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो हार्ट में छेद रहते हैं वो भी कैथ लैब में बिना ओपन सर्जरी करते हुए कर सकते हैं. ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्जरीज कर सकते हैं कैथ लैब में. मुझे यकीन है कि जब आप मरीजों को प्रोसीजर की अहमियत समझाते होंगे तो कई सारी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ती होंगी, तो वो क्या समस्याएं हैं? सबसे इम्पोर्टेंट समस्या है जब मरीजों को हार्ट के बारे में एक्सप्लेन करने में कि पेशेंट जब आप देखते हैं तो उनके अंदर कुछ दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है, बट जो पेशेंट को तकलीफ होती है द पेशेंट हिमसेल्फ ओनली नोज व्हाट प्रॉब्लम है. कि मतलब पेशेंट बोलता है मुझे छाती में दर्द हो रहा है, मुझे पसीना आ रहा है, द पर्सन और रिलेटिव्स दे डोंट अंडरस्टैंड कि क्या कंप्लेन है और उनको लगता है कि एसिडिटी या कुछ और चीज़ होगी जिसकी वजह से ये तकलीफ़ हो रही है
और वो हार्ट डिसीज़ को लास्ट ऑप्शन रखते हैं उनके दिमाग में। ये मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन है जो कि जनरल पब्लिक में अपने को अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा। तो आप कैसे तय करते हैं कि किसे एंजियोग्राफी, किसे एंजियोप्लास्टी या किसे बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है? और हर प्रक्रिया को अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सकें कि हर प्रक्रिया के लाभ क्या-क्या हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हम उस पेशेंट को एंजियोग्राफी एडवाइस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो हमको आप उनके सिम्पटम्स बताते हैं। जनरली पेशेंट अपने फैमिली डॉक्टर या इनको बताते हैं, बट जब वो डायग्नोस नहीं कर पाते हैं पेशेंट के प्रॉब्लम, दे हमारे पास सुपर स्पेशलिटीज़ के पास आते हैं। उनके प्रॉब्लम जैसे कि पहले हम 3 कैटेगरीज़ में पेशेंट के सिम्पटम्स और इन्वेस्टिगेशन। पेशेंट के सिम्पटम्स, पेशेंट को छाती में दर्द हो रहा है, साथ ही साथ पसीना आ रहा है, सीढ़ी चढ़ते वक्त तकलीफ हो रही है, ये बेसिक सिम्टम्स जो पेशेंट बताते हैं वो हम पहले देखते हैं। उसके बाद हम उनका ईसीजी करते हैं, उनका 2D इको करते हैं। इस ईसीजी और 2D इको में अगर कुछ डायग्नोस नहीं हुआ तो हम स्ट्रेस टेस्ट, जो ट्रेडमिल पे पेशेंट को चलना पड़ता है 5-10 मिनट्स, ये तीनों टेस्ट करने के बाद अगर इस तीनों टेस्ट में से किसी में भी पेशेंट पॉजिटिव आता है तो फिर हम उन पेशेंट्स को एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है जो कि हाथ से हम करते हैं, जिसमें हाथ में एक छोटा इंजेक्शन लगा के वहाँ से कैथेटर डाल के हार्ट में डाई डाल के देखते हैं कि हार्ट के अलग अलग ब्लड वेसल्स में कहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं। जैसे कि मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हार्ट में 3 ब्लड वेसल्स रहते हैं मेनली, एलएडी, एलसीएक्स और आरसीए, जो कि 3 हार्ट के पार्ट्स को सप्लाई करते हैं, अलग अलग पार्ट्स को। इसमें से कौन से भी एक नस में या तीनों नसों में ब्लॉकेज रहने के हिसाब से, उसके परसेंटेज के हिसाब से हम पेशेंट को एंजियोप्लास्टी या बाईपास एडवाइस करते हैं। अगर पेशेंट को 1 या 2 नसों में ब्लॉकेज रहा तो जनरली हम पेशेंट को एंजियोप्लास्टी, जो कि स्टेंटिंग, एडवाइस करते हैं। और अगर मल्टीपल पेशेंट को ब्लॉकेज रहे हैं और पेशेंट को डायबिटीज़ है तो हम ओपन हार्ट सर्जरी मतलब बाईपास एडवाइस करते हैं। और डॉक्टर प्रणेश, क्या ये सच है कि एंजियोग्राफी कराने वाले हर पेशेंट को एंजियोप्लास्टी की भी ज़रूरत होती है? ये बिल्कुल गलत धारणा है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो एंजियोग्राफी कराते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स का एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज नहीं आते हैं या मिनिमल ब्लॉकेज आते हैं, जिनको गोली दवाई से भी ठीक किया जाता है। तो हर एंजियोग्राफी के पेशेंट को एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत नहीं रहती है। अगले सवाल पर चलते हैं। स्टेंट क्या है और कैसे ये हार्ट डिसीजेस को रोकने में मदद करता है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया मैडम कि एंजियोग्राफी करते हैं और हार्ट की जो अलग अलग नसें रहती है उनके अंदर ब्लॉकेजेस रहते हैं। सिंपल भाषा में बताया जाए तो जो हार्ट की नसें हैं वो पाइप्स जैसे रहते हैं, दे आर लाइक ब्लड वेसल्स, जो आप आपके हाथों में भी देख सकते हैं। उनके अंदर 70% के उसके ऊपर अगर ब्लॉकेज रहा तो उनके अंदर अपन स्टेंट मतलब एक प्रकार की जाली रहती है जो कि पेन के अंदर जैसे स्प्रिंग दिखती है वैसे टाइप में, थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन में, जो उसके अंदर हम उस दवाई रहती है जो हम कैथेटर से अंदर डाल के वो जो ब्लॉकेज है उसको बड़ा कर देते हैं, जिससे वो जो ब्लॉकेज 70% है वो नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर प्रणेश, जैसे कि हम जानते हैं कि हार्ट डिसीजेस के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी मेडिसिन्स मौजूद हैं, तो क्या हार्ट में ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन जो होता है, क्या उसके लिए भी कोई मेडिसिन है? देखिए, हार्ट में जो ब्लड क्लॉट्स फॉर्म होते हैं ये वेरियस स्टेज है। इसको अपन 2 पार्ट में बांट सकते हैं, जिसमें एक्यूट इमरजेंसी रहती है, जो कि पेशेंट को हार्ट अटैक आता है जो अपन बोलते हैं, उसके अंदर पेशेंट को सीवियर चेस्ट पेन और पसीना छूटता है, तो उसमें से जो एक ऑप्शन रहता है तो थ्रोम्बोलाइसिस जिसको बोलते हैं, जो कि पेशेंट को हार्ट अटैक आने के 30 मिनट्स के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट करके खून पतला करने का एक इंजेक्शन देते हैं। साथ ही साथ उनको उसी समय बहुत सारे टैबलेट्स, जो खून पतला करने वाले टैबलेट्स और कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले टैबलेट्स देते हैं, जिससे कि हार्ट के क्लॉट्स डिसॉल्व होते हैं। और दूसरे टाइप्स के पेशेंट रहते हैं जो कि क्रॉनिक पेशेंट रहते हैं, जिनको क्रॉनिकली चेस्ट पेन, दम लगना और सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ होना, तो उनको भी हम खून पतला करने का सिर्फ टैबलेट्स देते हैं और एक दूसरे माइनर इंजेक्शन जैसे इनॉक्सोपैरिन वो देके एडमिट करते हैं। और कुछ पेशेंट्स रहते हैं जिनको क्रॉनिकली पेन रहता है तो उनको हम ओपीडी बेसिस पे दवाइयाँ देके खून पतला करने का और कोलेस्ट्रॉल कम करने का उससे कंट्रोल करते हैं। मेरा अगला सवाल है कि क्या सर्जरी के दौरान किसी ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन का खतरा होता है, और यदि हाँ तो आप इसे कैसे मैनेज करते हैं? सर्जरी में 2 टाइप्स की सर्जरी है, जो एक तो एंजियोप्लास्टी और दूसरा बाईपास। एंजियोप्लास्टी के दौरान खून पतला करने का इंजेक्शन हम पेशेंट को जब ऑपरेशन शुरू करते हैं उससे पहले ही हम स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही साथ हम पेशेंट को एंजियोप्लास्टी के लिए इलेक्टिवली जब लेते हैं उस समय पेशेंट को लोडिंग डोज में
एस्पिरिन और टिकाग्लेरोल का लोडिंग डोज दे के ही लेते हैं। इस वजह से ड्यूरिंग ऑपरेटिव पेशेंट का ब्लड क्लॉट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। सेकेंडली, बाईपास के अंदर भी हम पेशेंट को खून पतला करने का इंजेक्शन से लोड करते हैं और उनका खून पतला है या नहीं ये देखने के लिए ACT करते हैं, जिसके अंदर हेपेरिन का लोडिंग डोज रहता है। जी, तो पोस्ट सर्जरी की अगर मैं बात करूं तो पोस्ट सर्जरी आप पेशेंट्स को क्या ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं ताकि भविष्य में इस तरह की चीज़ें दोबारा ना हो? देखिए, 4-5 प्रकार की दवाइयाँ रहती हैं जो कि हार्ट सर्जरी के पेशेंट्स को लेनी है। हम पेशेंट्स को स्पेसिफिकली खून पतला करने की दवाई जैसे एस्पिरिन, टिकाग्लेरोल, प्रासोग्रेल, ये इम्पॉर्टेंट दवाई रहती है जो कि पेशेंट बंद नहीं करना रहता है। पेशेंट एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से टाइम हम पेशेंट को स्टेंट डालते हैं और वो दवाई बंद करने की वजह से स्टेंट ब्लॉकेजेस के बहुत खतरा रहता है, तो हम पेशेंट को खून पतला करने की दवाई कंपलसरी कंटिन्यू रखने को बोलते हैं। साथ ही साथ हम ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ भी पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली चालू रखते हैं। तो पोस्ट सर्जरी क्लॉट फॉर्मेशन का कोई खतरा दोबारा ना बने तो इसके लिए क्या सुझाव है आपके? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि मेनली 2 टैबलेट्स रहते हैं। एस्पिरिन जो कि बहुत कॉमनली यूज है, जो कि खून पतला रखते हैं, एंटी प्लेटलेट है। और सेकंड 2 अलग अलग टाइप की टैबलेट्स रहती है जैसे प्रासोग्रेल और टिकाग्लेरोल। इस दोनों में से एक टैबलेट हम कंटिन्यू रखते हैं जिससे कि पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट का स्टेंट बनना बंद ना हो और क्लॉट फॉर्मेशन ना हो। जी, तो हाल ही में देखा गया है कि आजकल हार्ट डिसीजेस के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इसका किस चीज़ से संबंध है? स्ट्रेस से या बदलती जीवन शैली या डायबिटीज़ के मामले जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आजकल के जो वो ट्रेंड्स चल रहे हैं, इसके अंदर देयर इज़ नो एज इन विच हार्ट डिसीज़ हैपन। आजकल 20 ईयर्स से लेके 80 ईयर्स कोई भी पेशेंट्स किसी को भी हार्ट अटैक आता है। मैंने बहुत से 20 साल 22 साल के लोगों को भी हार्ट अटैक देखा है, उनको स्टेंट भी डाला है। तो मेन रीज़न आजकल के, एक तो इंडियन पब्लिक में जेनेटिकली मोर थ्रम्बस फॉर्मेशन और क्लॉट फॉर्मेशन और कोलेस्ट्रॉल का तकलीफ रहता है। प्लस आजकल की जीवन पद्धति, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और डाइट और एडिक्शन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हार्ट अटैक इन दिस डेज इज स्मोकिंग, विच उसके वजह से इस हार्ट अटैक का यंग पेशेंट्स में भी बहुत सारा नंबर्स बढ़ गया है। तो ये कॉमन चीज़ें से जिसकी वजह से हार्ट अटैक जनरली होता है। हार्ट ब्लॉकेजेस की हमने बात की, तो हार्ट ब्लॉकेजेस का खतरा हमें पहले से ही पता चल जाए तो इसके लिए कोई सॉल्यूशन है या कोई टेस्ट आप इसके लिए सुझाव दे सकें? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हार्ट ब्लॉकेजेस डायग्नोस करने के लिए आजकल एक नया पद्धति निकली है जिसके अंदर पेशेंट्स टोटल जनरल बॉडी चेकअप कराते हैं, विच इंक्लूड्स ऑल ब्लड चेकअप्स, ECG, 2D इको, स्ट्रेस टेस्ट मतलब ट्रेडमिल टेस्ट। ये सभी चीज़ें अगर पेशेंट करे या कोई भी जनरली अगर वो सिम्टोमेटिक भी नहीं है, 35 आजकल हमारा तो बोलना है कि 30 ईयर्स के बाद में ही पेशेंट्स ने या जो कोई नॉन असिम्टोमेटिक लोग हैं उन्होंने अपने सब बॉडी चेकअप करवा लेने चाहिए, जिसके कारण वो प्री डायग्नोस हो जाए कि अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है या फ्यूचर में कुछ खतरा है, तो वो पहले ही डायग्नोस हो जाएंगे कि उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। और जब भी किसी को कुछ तकलीफ हो रही है, या छाती में दर्द हो रहा है या चेस्ट पेन होता है या पसीना छूटता है, तो इमीडिएटली होम रेमेडीज लेने के बजाय वो डॉक्टर के पास जाए और उनका पूरा इवेल्युएट करे रादर देन थिंकिंग वो एसिडिटी है। ये मोस्ट मिसकंसेप्शन है। जी, तो अगर हम बात करें हार्ट अटैक की या स्ट्रोक की, तो हार्ट अटैक या स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या भूमिका है डाइट की, खाने पकाने का जो तेल हम इस्तेमाल करते हैं उसकी क्या भूमिका है, लाइफस्टाइल की क्या भूमिका है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जो कि सभी जानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल है बोलना और करना भी, व्हेनेवर वी एडवाइस। बट सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि मॉर्निंग में वॉक के लिए जाना है, डेली जो अपना ब्रेकफास्ट और लंच एंड डिनर जो खाते हैं उसके अंदर मिनिमम फैट वाली चीज़ें, कम तीखी, कम नमक वाली चीज़ें खाना और सैलड्स बढ़ाना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच विल हेल्प टू प्रिवेंट। और ऑयल्स में अगर मैं बोलूँगा तो जनरली स्पीकिंग हमारे में जो डिस्कशन होता है तो ऑलिव ऑयल एंड राइस ब्राइन ऑयल इज़ फाउंड आउट टू हैव लेस रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी, जिसकी वजह से मेडिटेरियन में जो ऑलिव ऑयल खाते हैं लोग उनके अंदर कम हार्ट डिसीज फाइंड आउट हुआ है। तो ऑलिव ऑयल, राइस ब्राइन ऑयल और वॉट एवर, see any type of oil is dangerous whatever you say, but
to use it in the proper quantity or less quantity will help. और हमारे दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश है डॉक्टर प्रणेश, जिससे कि हम एक हेल्दी हार्ट के साथ एक हेल्दी लाइफ भी जी सकें? हेल्दी हार्ट के साथ हेल्दी लाइफ जीने के लिए एक ही मंत्र मैं बोल सकता हूँ कि आपका लाइफस्टाइल चेंज कर दीजिए। आपके कोई एडिक्शंस है तो एडिक्शंस जल्द से जल्द रोक दीजिए। सुबह जल्दी उठिए। सुबह उठने के बाद एक हाफ एन आवर का वॉक लीजिए। डेली चलते फिरते रहिए। स्ट्रेस ना लीजिए। स्ट्रेस जो कि सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है जिसकी वजह से आजकल हार्ट अटैक के कारण पेशेंट जाते हैं। योगा कीजिए विच विल हेल्प टू प्रिवेंट द फ्यूचर हार्ट अटैक। और आपको कुछ भी तकलीफ हो रही है तो इमीडिएटली आपके नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके आपका पूरा इवैल्यूएशन कीजिए और रेगुलर इंटरवल्स पे टोटल बॉडी चेकअप करवाते जाइए। सो डॉक्टर प्रणेश, अगर आपसे कोई मिलना चाहता है या आपसे कोई सलाह लेना चाहता है तो वो आपको कहाँ और कैसे मिल सकता है? हमारे हॉस्पिटल जो है नॉर्दर्न के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दहीसर ईस्ट में हूँ। ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के दहीसर मेट्रो स्टेशन के बाजू में ही है। यहाँ पे मैं डेली मॉर्निंग 11 to 1 के बीच में मैं अवेलेबल रहता हूँ। यहाँ पे ओपीडी है और यहाँ पे हमारे पास सभी प्रकार की जो जांच होती है जिसके अंदर 2D को स्ट्रेस टेस्ट, ईसीजी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सभी अवेलेबल है। सो डॉक्टर प्रणेश, जैसे कि आपने अपना हॉस्पिटल दिखाया विद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज एंड आई एम सो मच इम्प्रेस्ड विद दैट एंड आई एम श्योर हमारे दर्शकों को भी उतना ही मज़ा आया होगा जितना कि मुझे। और साथ ही मुझे ये भी पता चला कि अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम होती है तो उसे साउथ मुंबई जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे के पास में ही आपका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहां पर आकर लोग अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं एंड यू आर द बेस्ट वन हु कैन टेल देम बेटर। सो टिकटॉक फॉर हेल्दी हार्ट टॉक शो पे हमारे साथ हमारे दर्शकों को एडुकेट करने के लिए आपने अपने बिजी शेड्यूल में से कीमती समय निकालकर आज आप हमारे शो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रणेश। दर्शकों, दिल को स्वस्थ रखने के बारे में और हमारे विशेषज्ञों से सही जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ टिकटॉक फॉर हेल्दी हार्ट टॉक शो पर। मैं आपको बता दूं कि हमारा शो टिकटॉक फॉर हेल्दी हार्ट अब इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं जियो सावन एंड स्पॉटिफाई पर। दर्शकों, आप सभी का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे टिकटॉक फॉर हेल्दी हार्ट टॉक शो पर एक नए स्पेशलिस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।